तरह तरह के प्रदर्शन करते रहे, कभी प्रधानमंत्री आवास पे जाकर, कभी गांधी स्मृति पे जाके, तो कभी इंदिरा भवन में जाकर, कभी यहां पर आकर। इससे यह भी बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो किसी भी आंदोलन को खड़ा करने में पूर्णतः अक्षम है, जनाधार विहीन, विवेकहीन नेतृत्व के कारण न जनता उनके साथ है, न उनके गठबंधन सहयोगी उनके साथ है, न उनके नेता उनके साथ है, किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाती है, तो सत्ता लोलुप दृष्टि से वो। नमस्कार। थोड़ा सा भैया हो जाओ पीछे। हाँ, सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना। तो ये भैया देखिए, एक वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please. One at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons
pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. सोमवार को बिल जब आएगा, सोमवार को बिल आने के बाद सरकार से जा रही है कि इसको और स्ट्रिंग करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए लाएंगे। तो क्या पहले आप लोग की मांग ये रहेगी कि पीएम पहले माफी मांगे, उसके बाद ही आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे, या उसके बिना भी कोई रास्ता? देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा. हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे. मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं. Congress party's idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it, and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. तो राहुल गांधी ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की माफी पर वो अड़े रहेंगे और संसद में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएंगे. आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब एक रिएक्शन आपके पास चलते हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का अंत हुआ है. उम्मीद यही होगी कि जब संसद चले तो कम से कम बच्चों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो. सबसे पहले तो अंजना जी, मैं छात्रों को और देश के युवाओं को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा. तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया
और आज जिस तरह से देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया क्योंकि यह अनैतिकता, अहंकार और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है जो पिछले कई दिनों में देखी गई है। जिस तरह से आज इस्तीफा हुआ है, अगर ये पहले हो जाता तो 22 बच्चों की जान भी बचती, सैकड़ों बच्चे घायल होने से बचते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक मुखौटा है। सिस्टम से लड़ाई सिस्टम से है जो टूल किट चलाता है। आज छात्रों की गूंज ने अहंकार की दीवार को गिरा दिया, घमंड टूटते हुए पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत देर कर दी आते आते हुजूर आला। ये बच्चों की जो 22 बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो आज किस अवस्था में होंगे, और जो सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पैलेट गन और लाठियों खा के जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने तमाम चीजें चलाई। मोदी जी ने हर तरह से बच्चों को गुमराह करने का भी प्रयास किया, रात को 12 बजे आकर रील भी बनाई। लेकिन मोदी जी, आपके फ्रेंडशिप को युवाओं ने अस्वीकार कर दिया। आज तक पर जो आज ये दृश्य चल रहा है, देखिए सब लोग किस तरह से युवा झूम रहे हैं। ये झूम रहे हैं केवल इस बात पे कि मोदी सरकार का अहंकार इन्होंने तोड़ा है। मुख मुद्राएं राहुल गांधी की मत देखिए मेरे बीजेपी के साथी, मुख मुद्राएं मोदी जी की रात को जब 12 बजे रील बनाई थी ना, उन मुख मुद्राओं को भी देख लेते। उनमें क्या किस तरह के भाव भंगिमा पूरे देश ने देखी है और किस तरह से जेनजी ने उसको किस रूप में लिया है। दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया है। वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथों में गिरवी रख दिया है। वो शिक्षा तंत्र, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने कब्जा किया है, अगली लड़ाई हमारी उस चीज को लेकर है। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से तकनीक की बात हमने अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तकनीक की बात कही, एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके बावजूद 21 जून का पेपर इनोवेटिव व्यू कंपनी की चालाकी और बदमाशी और भ्रष्टाचार की वजह से उसके बाद भी बायोमेट्रिक्स में घपले हुए। बिहार में और महाराष्ट्र में तकनीक की बात तो भाजपा के लोग करें ही ना, ये तो नाली से गैस निकालें, इनकी सोच वहीं तक है। तकनीक की बात कांग्रेस पार्टी करती है और तमाम तकनीक हम ही लेकर आए थे। इन्होंने शिक्षा के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं किया। एनईपी भी लेकर आए, वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए। जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन को मनोज जोशी को हटाया गया था, पूरे देश ने देखा था। इन्होंने पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पेपर लीक तक बात सीमित नहीं है, जिस तरह से तमाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है, उसके लिए आगे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों के आदेश पर पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। केस वापस लिए जाएंगे, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। किसान आंदोलन में भी इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आज तक केस चल रहे हैं। केस टाइम फ्रेम में तमाम केस वापस होने चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो झुंझुना देश को दिया है इन्होंने, सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना दिया इन्होंने, और शाम को जो 2024 का मुख्य आरोपी था वो सीबीआई ने बरी कर दिया। सीबीआई भी अकाउंटेबल है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब सुन लीजिए। आलोक ठीक है, चार लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक नहीं होता। ठीक है, एक बार आशुतोष जी भी बोल रहे, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार आशुतोष जी से बोल लेते, फिर एक बार जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। आशुतोष जी, आज अखिलेश जी को भी हमने सुना, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली पेपर लीक रुके, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर वो फोकस जो है ना वो बच्चों से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, छात्र क्यों इतने उद्वेलित थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों नाराज? लेकिन बोल लीजिए आप। कोई नहीं, गो अहेड। इसके बाद वर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से बोलिए। अरे बोल लीजिए भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि छात्र क्यों नाराज थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों उबल रहे थे, पेरेंट्स क्यों सड़क पे थे? एक बार नहीं, अगर एक बार का मामला होता तो सुलझ जाता। बार बार पेपर लीक हो रहे। जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे। यानी कहीं तो कोई रोक लगनी चाहिए। और भी कई राज्यों में हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में पंजाब भूल जाता। एक कोई बात नहीं, पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना। नहीं, हमें सब याद है। हाँ, कहीं पेपर लीक सब याद है। सत्यप्रकाश जी, उत्तराखंड अगर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता।
सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई, झारखंड में क्या हो रहा है मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को केंद्र के अंदर, कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। 12 साल से आप सरकार के अंदर, आप झारखंड की बात करते, पंजाब की बात करते, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। ये छात्र बेवकूफ थे जो सड़कों पर बैठे होते वहां पे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ये खबर दे रहे हैं 72 घंटे के अल्टीमेटम के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने, आ रही हूं मिश्रा जी, आ रही हूं, प्रधान के इस्तीफे पर यह खबर है कि 72 घंटे के अंदर हम फिर संसद मार्च करेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था। 20 जुलाई को जो हुआ उसने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है? हिमांशु जी अंजना, देखिए, जब से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कल दूसरे राउंड की बातचीत हुई थी उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम संसद तक मार्च निकालेंगे और ये बात हम बाहर जाके अनाउंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 2 मांगे जो है उनकी लगभग मान ली गई थी, प्रिंसिपली एग्री हो गए थे, जिनमें केस वापसी और उसके साथ साथ जो है मुआवजे की बात, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसका अमाउंट तय नहीं हुआ था। सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे 1 करोड़ में, सरकार की तरफ से कहा जो भी होगा हम आपको बता देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने कहा इससे कम पर हम नहीं मानेंगे, अपने 2 मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन तीसरी नहीं मानेंगे तो हमारे लिए भी मजबूरी है, हमको 72 घंटे में जो है नया एक मार्च की घोषणा करनी है। अब तय कर लीजिए, हम बाहर जाके घोषणा करते हैं, ये कहा गया, आप मत कीजिए, हम बात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करके जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। आज तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो होनी थी 3:30 बजे, लेकिन उससे पहले 2:17-18 पर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये एक्स पर पोस्ट करके जो है वो बताया कि उन्होंने छात्रों की भावनाओं को सम्मान करते हुए जो है वो इस्तीफा दिया है। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि वो अकाउंटेबल है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और जो भी संभव हो सकता था वो सभी काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठा सकती थी, इसीलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये इस चीज का एक अनुमान हो चुका था कि ये प्रोटेस्ट इससे कम पर नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि 2 राउंड की बातचीत सीजेपी के साथ हुई, जो उनके प्रतिनिधि है, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक से भी 2 राउंड की बातचीत हुई। दूसरे राउंड में उन्होंने जरूर जो है वो अपना अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा ये एश्योरेंस नहीं दी गई है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, अगर जल्दी होगा तो नुकसान कम होगा। इस चीज को पूरे तरीके से अगर देखें तो ये जो कल दूसरे राउंड की मुलाकात थी सीजेपी प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ, वहां जब मामला अटक गया उसके बाद शायद सरकार के अंदर बहुत सी चीजें हुई। दोनों मंत्री जाके गृह मंत्री को ब्रीफ करके आए, गृह मंत्री से बातचीत हुई, सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की कि वो मानने को तैयार नहीं है और 72 घंटे की बात जो है वो कही गई है। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के अंदर एक तरीके से बातचीत हुई और उसके बाद जो भी हुआ वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया। एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं दिल्ली के। अब जबकि ये ऐलान हो गया है और जेपी नड्डा और सौरभ दास, आशुतोष रांका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हाथ मिलाते हुए ऐलान किया गया है वहां से कि अब अनशन खत्म कर रहे हैं। तो अब सारे मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं ताकि जो छात्र यहां पर आए हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, वो वहां से निकल पाए। जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं उसको।
दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब जो प्रदर्शनकारी यहां पर आए हुए थे, जो छात्र आए हुए थे, उनके लिए वहां से निकलना आसान हो जाएगा, वरना मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये कॉल ऑफ भी कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि चलिए अब ये आंदोलन खत्म हो रहा है, क्योंकि जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। आशुतोष जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली थी, आपने कर ली थी। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, आज देखिए बड़ा सवाल वही जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए मिलकर अब एक कारगर तरीके से काम करना होगा। और अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो आपको उनको मजबूर करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कुछ मतलब उस पर तैयारी करके कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे हो। ये नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से होगा, जब तक सही आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना होगा। नहीं, देखिए अंजना जी, ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन का अगर लब्बो लवाब यही है कि एक प्रतीकात्मक जीत तो हुई है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो काम नहीं हो सकता। एक बड़ी सरकार की एक बात समझनी होगी, ये सरकार जो है ये प्रतिक्रियात्मक हो गई है, ये प्रतीकात्मक हो गई। मतलब अगर जनजी आके आंदोलन ना करते तो ये नीट की परीक्षा के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, ये अहंकार चलता रहता और ऐसे ही लगातार और पेपर लीक होते रहते, बच्चे परेशान होते रहते, सुसाइड होते रहते, प्रधानमंत्री ऐसे ही मेलोडी करते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यही हुआ, लगातार चोरी होती जा रही थी अयोध्या मंदिर में। अगर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होके इस बात का रहस्य उद्घाटन ना होता तो चोरी चलती रहती, काम होता रहता। इसका मतलब अब प्रोएक्टिव सरकार नहीं रह गई और सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो अब वो सरकार बताए कि हम ये करने वाले हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अनसुलझे सवाल कई पेपर लीक के बारे में है। मैं बात उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये करना क्या चाहते थे और पूरी कोशिश करी आखिरी दिन तक इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, इस प्रोटेस्ट को फंडिंग बताई जाए, चाइना, सोरेस, पाकिस्तान, ना जाने क्या क्या किया। अंतोगत्ता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आके बोलना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई फंडिंग आ रही, मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन जबरदस्त एआई डीप फेक की तरीके से पूरा भाजपा लगा हुआ था कि गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं है, ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, पता नहीं क्या क्या किया। अरे एक बार भी आप नहीं समझ रहे थे ये आपके बच्चे हैं, इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप बात सुनने को तैयार नहीं है। सत्य प्रकाश, मैं देख रहा था, मैं एक मिनट अंजना, मैं देख रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे कि दिशाहीन, नेतृत्वहीन ये लोग विपक्ष के हैं। अरे 2013 के अन्ना आंदोलन में क्या नरेंद्र मोदी चले गए थे, अमित शाह चले गए थे, राजनाथ सिंह चले गए थे? वो दिशाहीन है, वो नेतृत्वहीन है? ये कैसी बातें आप बेकार की बोल रहे हैं? छात्रों के आंदोलन में वहां पे क्या करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े होके? हम लोगों का समर्थन था, सदन में खड़े होकर समर्थन दिया। अगर हम झंडे लेके जाते तो आप कहते देखो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं नहीं थे सुधांशु जी, कहीं नहीं थे। टाइमलाइन में जाइए, सुषमा जी और जेटली जी ने सदन में खड़े होकर अन्ना आंदोलन का सपोर्ट किया था और कहीं नरेंद्र मोदी किसी स्टेज पे नहीं गए थे। इसलिए गलत मत कीजिए, छात्रों बोल रहे कुछ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं अन्ना आंदोलन में भी तो बीजेपी के नेता नहीं गए थे। ये अलग बात है कि किरण बेदी बाद में बीजेपी के नेता बन गई थी, उमा भारती मंच पे गई थी। अच्छा, आशुतोष जी को याद है उमा भारती मंच पे हम नहीं गए थे, हमने उसके अंदर कोई सहभागिता नहीं की। मगर यहां तो उल्टी बात है, केजरीवाल जी जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे और राहुल गांधी नहीं जाएंगे। उससे आपको क्या मतलब है? वो डिस्कशन का मतलब नहीं है की बातों का क्रमवार उत्तर दे। भारती भी नीचे थी, मंच पर नहीं। अरे सर, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। अभी सारे देखिए, आज विपक्ष के अंदर की जो मना स्थिति है वो राहुल गांधी जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा से आप देखिए कि जिस समय यहां पर अनशन चल रहा था उस समय वो धरती के अज्ञात स्थान पर आनंद मंगल करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए कहां अंतर ध्यान थे किसी को नहीं पता। अचानक संसद सत्र से शुरू होने से 3-4 दिन पहले साहिब आलम अवतरित होते हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर स्थानों पे तरह तरह की नाटकीयता करते हैं और वो 10 जनपद के सामने खंभा नोचते हुए दिखाई पड़े। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ ये छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इस आंदोलन में अवसरवादी तत्व, अराजक तत्व और अपराधी तत्व तीनों अंदर घुसकर छात्रों के पीछे छुपकर देश की व्यवस्था के अंदर समस्या उत्पन्न करना चाहते थे। उनके मंसूबे नाकाम हो गए
और अंजना जी मैं कहूंगा, जैसे आपके अभी संवाददाता बोल रहे थे हिमांशु जी, अब इनका स्रोत क्या है मेरे को जानकारी नहीं, मगर ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि आज तो वार्ता शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कल 72 घंटे का अल्टीमेटम हुआ था, तो फिर आज 3:30 बजे के लिए वो तैयारी नहीं होते वार्ता करने के लिए। इसलिए यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है, लॉजिकल नहीं लगती है। खैर, वो जो भी है स्रोत वो अपनी जगह है, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्रों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और छात्रों को आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे से ऐसे कोई सत्ता लोलुप अवसरवादी दल, ऐसे कोई अराजक तत्व, इवन आपराधिक तत्व आपके आंदोलनों में घुसपैठ कर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जब सरकार आपसे सीधे संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से अराजकता के द्वारा घमासान उत्पन्न करने का मंसूबा पाले हुए तत्वों के प्रति छात्रों को भी बहुत सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। रागी जी, आप अभी तक नहीं बोल पाए, आप भी बोलिए। अब तो इस्तीफा हो गया है और आप ये बार बार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी आते आते। हाँ, इसके साथ ही मैं मिश्रा जी भी नहीं दो चीजें बोल देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में सीएए, किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन, ये तीनों का सम्मिश्रण होने की भूमिका तैयार कर दी गई थी। शाहीन बाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि भारतीय किसान कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे पहले बोल लेने दीजिए। हस्तक्षेप करूंगी इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन ने, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। किसान आंदोलन ने कहा, भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 27 से हम भी दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद हम छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। अगर कोई समर्थन दे रहा है तो क्या गलत है इसमें? तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, आप डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं ना, आप डिस्क्रेडिट करना मत कीजिए और मत कीजिए। मैं आपको कह रही हूं ना, तीनों का सम्मिश्रण होने जा रहा था और ये खतरनाक होता। आप जिनके समर्थक हैं ना, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे ये सब बोल के। आप मुझे मत बोलिए भाई, ये इसमें छात्र नुकसान हो रहा है मैं देख करके तो नहीं बोलूंगा। छात्र थे, मैं इसमें छात्र थे या नहीं थे, आप ये बताइए। छात्र थे तो, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो भी छात्र थे। वो तो पुलिस बताएगी। नहीं, पुलिस बताए ना कौन थे। गुंडागर्दी करने वाले भी छात्र थे, 40 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे, 36 और 35 साल और 36 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे। ठीक है, आप अपनी दुनिया में रहिए। नहीं, हम अपनी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ब्लैंकेट ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैं ये मान रही हूं, लेकिन जिन्होंने उत्पात किया है वो प्रदर्शनकारी ही थे या वो छात्र थे, ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए मत ऐसा बोलिए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर जानबूझकर डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे इस आंदोलन को। समझिए, छात्र थे तभी तो छात्रों की बात मानी गई। आपका असेसमेंट ऐसा है, मंत्री का मैं कह रहा हूं कि छात्र आंदोलनकारी छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें बाकी और लोगों की भूमिका थी। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे क्या? क्या वामपंथियों के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे क्या? ठीक, देखिए, मैं एक जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा है छात्रों की बड़ी जीत हुई है। ठीक है, हमारी तरफ से इतना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की छात्रों से बहुत प्रीत है और उस प्रीत को निभाएंगे। उन्होंने मांग रखी, सारी मांगे स्वीकार कर ली गई। ये लोकतंत्र है, यहां जनता की बातों को सुना, समझा और स्वीकार किया जाता है। जो प्रधानमंत्री हर मंच पर दंडवत जनता को प्रणाम करते हैं, संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक होकर सदन की ओर जाते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अहंकार में बिल्कुल नहीं, जनता से प्यार में, अहंकार में नहीं है। ठीक है, एक डेडलॉक आया था, थोड़ी बातें उनकी आई, समझी गई। पहली प्राथमिकता थी कि नीट को कैसे दुरुस्त फिर से कराया जाए। इस देश में पेपर लीक की समस्या आज नई नहीं है, अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ी भी है। उसको हर तरह से उस लीक को खत्म किया जाए, ये सरकारों का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। अब एक सवाल है कि जो छात्र आंदोलन में घुस गए थे, देखिए पॉलिटिकल वल्चरिज्म वहां हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास पे, बोला कि सब यहीं पहुंच जाओ, उनका मकसद कुछ और था। हो सकता है अराजकता फैलाना हो, नेपाल बांग्लादेश को लोग कहते भी रहते हैं हमेशा, श्रीलंका बना दो, केजरीवाल जी भी कह चुके हैं। सवाल है जिन छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनके संवाद का स्तर जरूर थोड़ा गिरावट भरा दिखा है कई वीडियो में, लेकिन एक मांग थी, उस मांग को स्वीकार कर सरकार ने जनतंत्र का सम्मान किया है। ये सरकार 1974 में छात्र आंदोलन से इस देश में सरकार बदल गई थी, उसके बहुत सारे लोग इस सरकार में भी हैं।
क्या हुआ था 18 मार्च को 1974 को, आशुतोष जी को शायद याद हो, गोलियां चल गई थी, छात्र मर गए थे, मांग बहुत साधारण सी थी। मेरा मानना है यहां से एक नया रास्ता सरकार और छात्रों के बीच का संवाद का खुलता है। सरकार हमेशा छात्रों के भरोसे के साथ काम करे और यह मुकर्रर करे कि इस देश में कम से कम छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक बात और है, जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म पे निकले हैं उन लोगों का इतिहास इन छात्रों को शायद इसलिए नहीं मालूम होगा कि जो छात्र 12 साल पहले 5 साल के थे वो आज 17 साल के हैं, नीट दे रहे हैं। जो 10 साल के थे वो 20 साल के हैं, जो 12 साल के थे वो 22 साल हैं, जो 12 साल के होंगे वो 24 के होंगे। तो उनका इतिहास नहीं पता कांग्रेस का कि गहलोत साहब को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए ना, आज भी कर दीजिए। मॉरल ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को,
उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। वी हैव ब्लडी सेनेट। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे। Give me the names of all the नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए।
बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर।
सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। Firefox Fast and Private Browser. Try it now. राजस्थान की कक्षा 12वीं के बच्चों, क्या आपने इस साल राजस्थान का टॉपर बनने का सपना देखा है? बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी।